My lovely students, welcome to Mathological. क्या हाल चाल? How are you all? Start करते हैं सेशन. And if you've not already subscribed to the YouTube channel, liking the content, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दो. You can also join the Telegram channel Mathological, or you can message me on Telegram at ADITYAKT. So first question of this session: in how many ways some of the 16 identical toys can be placed in 4 distinct boxes such that each box contains at least 3 toys? So all 16 toys are identical. And we have to place these toys in 4 distinct boxes such that each box contains at least 3 toys. हर एक बॉक्स में minimum 3 toys must be there. और total boxes हैं 4. Let us say boxes are A, B, C and D. In each box, number of toys should be greater than equal to 3. And all 16 toys are identical. तो पहले ही हम 3 toys boxes में fill up कर देते हैं. ठीक है, so 3 toys each we filled up already. Once we've done that, now remaining toys कितने होंगे? 4 toys are remaining, total 16 थे, तो 16 minus 12, 4 toys are remaining. Now let us say A number of toys are placed in box A, small b number of toys in box B, small c number in box C and small d number in box D. और क्वेश्चन कह रहा है sum of the 16, very important, not all 16 necessarily, but sum of the 16. ठीक है, सो टोटल 16 सारे के सारे भी पुटअप किए जा सकते हैं और लेस देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी नॉट नेसेसरली हैज टू बी इक्वल टू 4, इट कैन बी लेस देन और इक्वल टू 4. एंड ऑल दीज वैल्यूज a b c d दीज कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, अगर हम एक ही स्टेप में लिखते हैं सारी बातों को, तो क्योंकि हमें पता है कि ईच बॉक्स मस्ट कंटेन एटलीस्ट 3 टॉयज, तो स्मॉल a प्लस 3 in the first box plus small b plus 3 in the second box plus small c plus 3 in third box plus d plus 4, that should be less than equal to total 16. ये इक्वेशन बनता है हमारा 4 नहीं, लास्ट वाले में भी प्लस 3 आएगा. ठीक है, अब इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. जैसे प्रीवियस सेशन में देखा, जब भी हमें इनइक्वालिटी मिलेगा तो क्या करेंगे? वी विल इंट्रोड्यूस अ फॉल्स वेरिएबल. ठीक है, एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देंगे, लेट अस से दैट इज इक्वल टू e. तो a प्लस b प्लस c प्लस d plus e, this should be equal to 4. And all these values, a, b, c, d, e, all these have to be greater than or equal to 0. The number of solutions will be 4 stars and 4 bars of 5 variables, so that will be 8c4. 8c4 will be our answer, which will be 8 into 7 into 6 into 5 by 24, which is 2 into 7 into 5, 70. The total number of solutions in this case will be 70. Clear? Okay. ठीक है, अदरवाइज हम इंडिविजुअल केसेस निकालते हर एक केस में. सिंस वी नीड एटलीस्ट 3 टॉयज, टोटल टॉयज मिनिमम भी रखेंगे तब भी कितने होंगे? मिनिमम टॉयज भी होंगे, तो 3 into 4 12 टॉयज विल बी देयर. तो ईदर नंबर ऑफ टॉयज कैन बी 12 और कैन बी 13 और 14 और 15 और 16, और सारे केसेस में नंबर ऑफ वेज निकाल लेते. इफ नंबर ऑफ टॉयज इज 12, तो देयर इज एग्जैक्टली वन वे, टी ईच. इफ नंबर ऑफ टॉयज इज 13, क्योंकि ऑलरेडी हमने टी ईच प्लेस किया हुआ है. ठीक है, नंबर ऑफ टॉयज अगर 13 होगा, सो 1 एक्स्ट्रा है. ठीक है, तो बेसिकली हमें 13 ऐसे समझो कि एक एक्स्ट्रा है, क्योंकि 3 तो पहले हमने प्लेस किया हुआ है, तो बस एक ही टॉय को प्लेस करना है. सो दैट वन टॉय कैन बी प्लेस्ड इन एनी ऑफ द 4 बॉक्सेस, इजंट इट सो? 4 C1 वेज में दैट कैन बी प्लेस्ड. ओके, सिमिलरली बाकी केसेस में एग्जांपल निकालो कि 2 टॉयज हैं, कितने वेज होंगे? अकॉर्डिंगली 3 टॉयज हैं, कितने वेज होंगे? 4 टॉयज हैं, कितने वेज होंगे? या फिर इक्वेशन बना लोगे स्ट्रेट अवे कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1, यानी कि इन दैट केस 1 प्लस 3 4c1, दिस विल बी आवर आंसर. और 4c3 बात देखिए, 4c1 4c. ठीक है, इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे, अपने एंड पे कर लेना, आंसर तो 70 आने वाला है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. Arun has 50 identical milk chocolates and 40 identical dark chocolates. In how many ways can he distribute the chocolates to 4 children, Anu, Bina, Charu and Disha, such that each child gets odd number of milk chocolates? Also, number of dark chocolates with each should be an odd multiple of 5. यानी कि he has total 50 milk chocolates and 40 dark chocolates, and all milk chocolates are identical and all dark chocolates are also identical. तो पहले milk chocolates की बात करते हैं. Condition is that there are 4 children A, B, C and D, Anu, Bina, Charu and Disha, such that each child gets odd number of milk chocolates.
कंडीशन ये है दैट एवरी चाइल्ड शुड गेट ऑड नंबर ऑफ मिल्क चॉकलेट्स, यानी कि नंबर ऑफ मिल्क चॉकलेट्स हैज टू बी ऑड इन ईच केस। अब अगर हमें ऑड मानना है तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे इसके लिए? एन ऑड वैल्यू कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2n-1 और 2n+1, बोथ आर फाइन। बट अगर हम कह रहे हैं 2n-1 एंड वी हैव टू अलाउ ऑल द वैल्यूज, we have to allow all the values, in that case n should be greater than or equal to 1, क्योंकि n is equal to 0 पुट कर दोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, जो कि निगेटिव हो जाएगा। अब चॉकलेट्स निगेटिव में तो दे नहीं सकते, तो डेफिनेटली अगर 2n-1 वैल्यू एज्यूम करने वाले हो ऑड के लिए, सो इन दैट केस n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वेरी इंपॉर्टेंट। और इफ यू आर एज्यूमिंग 2n+1, इन दैट केस n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज n इज इक्वल टू 0 पे हमें 1 मिल जाएगा। और सबसे पहली वैल्यू तो बनी होगी फर्स्ट ऑड नंबर, सिंस यहाँ पे चॉकलेट्स हम दे रहे हैं, ले नहीं सकते चॉकलेट्स उनसे, ठीक है। सो दैट इज वाई n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटर अप्रोच विल बी टू एज्यूम 2n+1। हाँ, 2n-1 मानने वाले हो तो फिर ध्यान रखना है कि हमें सॉल्यूशन चाहिए होंगे किसके लिए? व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पे n की जगह हम ABCD रखेंगे, बट लॉजिक समझ में आ रहा होगा, क्लियर है? सो लेट अस से सिंस 50 मिल्क चॉकलेट्स के लिए पहले हैंडल करते हैं, एंड ईच चाइल्ड शुड हैव ऑड नंबर ऑफ मिल्क चॉकलेट्स। सो लेट अस से चाइल्ड नंबर 1 ABCD आर 4 चाइल्ड्स, तो अनु के पास में कितना चॉकलेट्स मान लेते हैं? लेट अस से 2a+1 चॉकलेट्स आ गया। विद बीना लेट अस से 2b+1 चॉकलेट्स आ गया। चारू 2c+1, and with Disha 2d+1, and this total sum, this is equal to 50. Okay, and all ABCD should be greater than equal to 0, बिकॉज हमें सारी ऑड वैल्यू चाहिए। ये भी पॉसिबल हो सकता है ना, किसी एक पास 1 चॉकलेट हो, किसी के पास 3 हो, किसी के पास 7 हो, और जो बच गया वो सारा का सारा किसी एक पर्सन के पास में हो, तो हमें 0 से लेकर सारी वैल्यूज अलाउ करनी। ABCD शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, इक्वेशन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2a+2b+2c+d+4 इज इक्वल टू 50, यानी 46 आ जाएगा राइट हैंड साइड में। तो 2a+2b+2c+2d इज इक्वल टू 46। तो इक्वेशन बन जाएगा हमारा a+b+c+d इज इक्वल टू 23। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 23 स्टार्स एंड 3 बार्स फॉर 4 पर्सन्स, तो 23 + 3 26 C3, which will be 26 into 25 into 24 by 6. 25 into 4 is 100, so 2600 ways to distribute 50 milk chocolates such that each child gets odd number of chocolates. नंबर ऑफ वेज आ गए 26 फॉर 50 मिल्क चॉकलेट्स। अब बात करते हैं डार्क चॉकलेट्स की। तो इन केस ऑफ डार्क चॉकलेट्स हमारा कंडीशन क्या है? दैट ईच ऑफ द चिल्ड्रन शुड गेट एन ऑड मल्टीपल ऑफ 5 नंबर ऑफ डार्क चॉकलेट्स। डार्क चॉकलेट्स के लिए कंडीशन क्या है? एन ऑड नंबर ऑफ 5 डार्क चॉकलेट्स। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो इसके लिए हैंडल करते हैं आप क्वेश्चन को। ऑड मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 का मल्टीपल भी होगा और ऑड मल्टीपल होगा, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाई सम ऑड नंबर। अब अगेन हमें ऑड चाहिए, तो 2n+1 के फॉर्मेट में एज्यूम करेंगे। लेट अस एज्यूम कि ABCD 4 पर्सन है हमारे, तो A इज गेटिंग 2a+1 into 5 number of chocolates. Now this is the odd multiple of 5, plus B is getting 5 into 2b+1 number of chocolates, and C is getting 5 into 2c+1. And lastly, D is getting 5 into 2d+1 number of chocolates. Our total sum is equal to total number of chocolates, which is equal to 40. इक्वेशन बन गया अपना, ठीक है। सो दिस बिकम्स 10a + 10b, या तो 5 से पहले डिवाइड कर दो 5 को कॉमन लेके, तो दिस बिकम्स 2a + 2b + 2c + 2d + 4 ones, तो +4, और 40/5 is equal to 8, and hence 2a + 2b + 2c + 2d becomes equal to 4, and hence a + b + c + d will be equal to 2. This is equal to 2. 2 stars and 3 bars, क्योंकि 4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 5 C3, यानी कि 10 ways will be there. 10 ways to distribute these chocolates among these 4 children such that everyone gets an odd multiple of 5 number of chocolates. आंसर आ गया अपना 10 ways। अब पहले वाले केस में आंसर आया था मिल्क चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन का 2600, एंड फॉर डार्क चॉकलेट दिस इज 10, सो टोटल वेज विल बी 2600 into 10, यानी कि 26,000 ways in total to distribute 50 milk and 40 identical dark chocolates. This will be the answer. Clear? बाकी 5 के मल्टीपल, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज ही मिलेंगे हमें, तो उससे टाइम मैनुअली भी इस क्वेश्चन को सेकंड पार्ट को कर सकते थे कि हम देखते कि 5 का मल्टीपल चाहिए और ऑड मल्टीपल चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ चॉकलेट्स क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी 5, और इट कैन बी 10 नहीं हो सकता, 15 हो सकता है, और मे बी 25,
और मे बी 35। अब 45 तो नहीं हो सकता बिकॉज टोटल ही 40 है। तो 5, 15, 25 एंड 35 दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज, इजंट इट सो? ठीक है, अगर हमने एक पर्सन को 35 चॉकलेट्स दे दिया, सो इन दैट केस 35 वन पर्सन, मे बी 5 टू सेकेंड पर्सन, एंड देन 0 0 टू द रिमेनिंग। बट क्या ये सॉल्यूशन पॉसिबल होगा? नहीं पॉसिबल होगा, बिकॉज इन दैट केस हमने 0 0 पे तो दिया है चॉकलेट्स कुछ को, जबकि हमें चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि दिस सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। 35 का तो किसी एक पर्सन को 35 नहीं दे सकते। नेक्स्ट वैल्यू कैन बी 25, तो 25 दिया, देन 15 दे दोगे, फिर 0 0 आ जाएगा, 15 नहीं दे पाओगे, यानी कि 25 के बाद में यू कैन गिव 5 5 5। दिस कैन बी वन केस, और कोई केस तो नहीं बनेगा 25 के साथ में। 15 दे के देख लो, इफ वन पर्सन इज गेटिंग 15, 15 एक और को दे दोगे, 15 15 5 5। ओके, एक को 15 और बाकी सबको 5, मामला बनेगा नहीं, यानी कि दीज आर द ओनली टू पॉसिबल केसेस। क्या समझ पा रहे हो? यही दो केस बनने वाले हैं हमारे। वन पर्सन विल बी गेटिंग 25, रिमेनिंग 3 विल बी गेटिंग 5, एंड सिंस ऑल आर डिस्टिंक्ट, नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल, और 4 वैल्यूज डिवाइडेड बाई, सिंस 3 आर इक्वल तो डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, यानी कि 4 वेज। एंड इन सेकंड सिनेरियो 2 आर 15, 2 आर 5, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 6। तो टोटल वेज विल बी 4 + 6 विच इज इक्वल टू 10 वेज। ओके, ठीक है, बात समझ में आती है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, next one, find a number of points with integral coordinates that lie inside a triangle whose coordinates are 0, 0, 41, 0 and 0, 41. Number of points with the integral coordinates that lie inside a triangle, और ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 0, 0, 41, 0 एंड 0, 41। तो व्हाट शुड बी टोटल नंबर ऑफ सच पॉइंट्स? कितने पॉइंट्स बनेंगे हमारे? सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं अपना। फॉर दीज कोऑर्डिनेट्स, फॉर दीज पॉइंट्स, लेट अस से दीज पॉइंट्स आर ए, बी एंड सी। A is 0, 0. Then we have B 41, 0 and C 0, 41. And we need all the points which are lying inside this triangle. Which are lying inside this triangle. अब यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत तो ज्योमेट्री हमें देखना पड़ेगा कि वी हैव टू फाइंड AC लाइन जो हमारा है दैट इज लाइंग ऑन द y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? दैट इज x इक्वल टू 0, बिकॉज ईच पॉइंट ऑन y एक्सिस हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा मूवमेंट कहाँ पे है? और वर्टिकल मूवमेंट है, यानी कि वी आर ओनली मूविंग अलोंग द y एक्सिस, तो हमारा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट तो 0 है, सो दैट इज वाई x कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा। सिमिलरली AB लाइन इज लाइंग ऑन द x एक्सिस, और x एक्सिस पे क्या है? सारा मूवमेंट हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल मूवमेंट तो 0 है, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। सो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन AB लाइन और x एक्सिस दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0। और थर्ड लाइन BC लाइन के लिए इक्वेशन क्या बनेगा हमारा? लाइन BC में एक पॉइंट है हमारा 41, 0, एक पॉइंट है 0, 41। तो एक तरीका हो सकता है, वन वे कुड बी दैट तुम इक्वेशन निकालो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, वेयर m इज स्लोप ऑफ द इक्वेशन, स्लोप ऑफ द लाइन, इक्वेशन का नहीं, स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, और m निकालोगे तुम, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बट हमें क्योंकि इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, बेसिकली दिस BC लाइन इज इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट पॉइंट B एंड y एक्सिस एट पॉइंट C। तो हमें x इंटरसेप्ट गिवन है दैट इज इक्वल टू 41 यूनिट्स, और y इंटरसेप्ट भी गिवन है दैट इज इक्वल टू 41 यूनिट्स। डायरेक्टली हम इक्वेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, दैट विल बी x अपॉन x इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू 41 प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू 41, एंड दिस इज इक्वल टू 1। बेसिकली x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1, जहाँ पे कि a हमारा x इंटरसेप्ट है और b हमारा y इंटरसेप्ट है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। 41 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फाइनली दिस इक्वेशन विल बी x प्लस y इज इक्वल टू 41। तो दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ लाइन BC। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? नाउ वी नीड दोज पॉइंट्स जहाँ के पे कोऑर्डिनेट हमारे इंटीग्रल हों, एंड दोज पॉइंट्स आर लाइंग इनसाइड दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अंदर के पॉइंट्स चाहिए, पॉइंट्स दैट आर लाइंग इनसाइड दिस ट्रायंगल। तो एनी पॉइंट दैट इज लाइंग इनसाइड दिस ट्रायंगल विल हैव इट्स x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है, क्योंकि 0 से तो बड़ा होगा। x इक्वल टू 0 वाला लाइन हमारा y एक्सिस है, उससे राइट हैंड साइड में है, यानी कि ऑल पॉइंट्स विल बी हैविंग x कोऑर्डिनेट दैट इज पॉजिटिव, यानी कि x कोऑर्डिनेट फॉर एनी पॉइंट। ठीक है, फॉर एनी पॉइंट लेट अस से x डैश वो पॉइंट है, तो x डैश इज दैट कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 फॉर श्योर।
इक्वल टू 0 नहीं होगा क्योंकि इनसाइड चाहिए हमको, ठीक है। सिमिलरली सेम लॉजिक फॉर वाई कोऑर्डिनेट, बिकॉज वाई एक्सिस से ऊपर ही है सारे के सारे पॉइंट्स हमारे विच आर इनसाइड दिस ट्रायंगल, सो वाई डैश और वाई कोऑर्डिनेट विल आल्सो बी ग्रेटर देन 0, एक्स डैश ग्रेटर देन 0, वाई डैश ग्रेटर देन 0, और सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए क्या, इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स, यानी कि इंटीजर वैल्यूज होंगे। तो इफ इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स हैं तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा उस केस में, 1 0 से बड़ा होगा, तो यानी कि डेफिनेटली 1 होगा, यानी कि एक्स डैश का मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 एंड वाई डैश का मिनिमम वैल्यू दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 1। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? और सारे के सारे पॉइंट्स हमारे x प्लस वाई इक्वल टू 41, द लाइन बी सी उसके नीचे ही होंगे, उसके नीचे होंगे, इजंट इट सो? तो दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल केस। तो x प्लस वाई इक्वल टू 41 के नीचे ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे आने वाले हैं। सो द इक्वेशन फॉर दोज पॉइंट्स satisfying those points that will be x plus y less than 41, x plus y this should be less than 41, isn't it so? And since x भी integer है, for every point x is integer, y is also integer, if both are integer और less than 41 सम आ रहा है तो डेफिनेटली क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, 40 आ सकती है। इन दैट केस मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 40, 41 तो हो नहीं सकता, सो दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 40, x plus y is less than equal to 40. Now we have to solve this equation. यहाँ पे x is also greater than equal to 1, y is also greater than equal to 1 and x plus y is less than equal to 40. नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, यानी हमें यहाँ पे नेचुरल नंबर सॉल्यूशन चाहिए इसके लिए, ठीक है। क्या कर देंगे, एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, तो x plus y plus t becomes equal to 40. Now x comma y have to be greater than equal to 1, but t है जो हमने इंट्रोड्यूस किया दैट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले ही x और y को 1 1 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और जैसे ही तुमने 1 1 दे दिया तो अब जो नया इक्वेशन हमारा बना वहां पे 1 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो बेसिकली इक्वेशन हमारा बन गया कैपिटल x प्लस कैपिटल y, क्योंकि स्मॉल x को हमने मान लिया 1 प्लस कैपिटल x, ठीक है। तो कैपिटल x प्लस कैपिटल y प्लस t दैट इज इक्वल टू 38, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। ये करते ही हमारा अब इसके बाद में सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज नाउ कैपिटल x एंड कैपिटल y एंड स्मॉल t ऑल वैल्यूज आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सबको हमने एक रेंज में लेके आ गए। अब आसान है, हमें टोटल 38 स्टार्स हैं एंड 2 बार्स हैं, बिकॉज 3 वेरिएबल्स हैं, 38 प्लस 2 40, तो 40 C2, that will be number of solutions or number of points that are satisfying all these conditions। 40 C2 हमारा आंसर हो जाएगा, 40 into 39 by 2, 39 into 20 यानी कि 780 such points will be there, 780 points will be satisfying these conditions or inside the triangle, these points are inside the triangle। is this part clear? अब इंस्टेड अगर इनसाइड द ट्रायंगल के बजाय क्वेश्चन हमसे पूछता कि पॉइंट्स दैट आर लाइंग इनसाइड द ट्रायंगल और एट द बाउंड्रीज ऑफ द ट्रायंगल, अगर बाउंड्रीज के भी पॉइंट्स हमें इंक्लूड करने होते तब एक और एडिशनल कंडीशन बढ़ जाता कि फिर हमें पता है कि x प्लस वाई लेस देन 41 तो चलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 41 भी चलेगा, बिकॉज x प्लस वाई इक्वल टू 41 हमारा बाउंड्री पे लाई कर रहा है, इजंट इट सो? ठीक है, सो इन दैट केस x प्लस वाई लेस देन 41, दिस इंक्लूड्स ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द ट्रायंगल, बट x प्लस वाई इक्वल टू 41 ये भी चलेगा, बिकॉज दिस इज लाइन BC। सिमिलरली x इक्वल टू 0 वाले पॉइंट्स भी चलेंगे, कौन से, जो कि x प्लस वाई लेस देन 41 को और y इक्वल टू 0 भी चलेगा, ठीक है। तो यानी कि x प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 41 वेयर x एंड y हैव टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वेयर x एंड y हैव टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे जब तुम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करोगे एक थर्ड वेरिएबल x प्लस वाई प्लस t, दिस इज इक्वल टू 41 एंड नाउ ऑल x y एंड t हैव टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉल्यूशन स्ट्रेट अवे आ जाएगा, that will be 41 plus 2, 41 stars 2 bars 43 C2, 43 into 42 by 2 and 43 into 21 which is 860 plus 43 903 points including points on the boundary, total points आ गए हमारे 903 out of which 780 are inside the triangle, so 780 inside plus remaining 123 will be on the triangle, 780 plus 123 on the triangle, ठीक है। एक बार मैनुअली भी इस चीज़ को करके देख लेते हैं। मेथड तो हमने समझ लिया कि कैसे हमने अपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया टू सॉल्व दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, एक बार हम मैनुअली भी इस चीज़ को करके देख लेते हैं। देखो बाउंड्री पॉइंट्स देखना आसान है, बिकॉज बाउंड्री पे अगर हम पॉइंट्स देखते हैं तो 0,0 इज 1 पॉइंट एंड 41,0 एंड 0,40, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C। लाइन AB पे नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने आने वाले हैं अपने?
0,0 से 41,0 तक, तो डेफिनेटली y कोऑर्डिनेट तो 0 आ रहा है सभी केसेस में, तो 0,0, नेक्स्ट वैल्यू 1,0, देन 2,0 एंड सो ऑन टिल 41, तो 0 1 2 एंड सो ऑन टिल 41। टोटल पॉइंट्स कितने होंगे ऑन लाइन ए बी? तो लाइन ए बी पे नंबर ऑफ पॉइंट्स विल बी, भाई 0 से लेकर 41, तो टोटल 42 वैल्यूज हैं, 42 पॉइंट्स विल बी देयर। सिमिलरली ऑन लाइन ए सी, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, 0,0, देन नेक्स्ट विल बी 0,1, देन 0,2 and so on till 0,41. टोटल पॉइंट्स होंगे फ्रॉम 0 to 41, 42 पॉइंट्स अगेन। नौ लाइन बी सी पे 0,41 है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? सम तो हमारा क्या चाहिए, क्योंकि लाइन का इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 41 फॉर लाइन बी सी, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स का सम विल बी 41। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा जैसे ही हम राइट वर्ड शिफ्ट करेंगे, 0 से एक्स कोऑर्डिनेट होगा 1, और एक्स कोऑर्डिनेट जैसे ही 1 होगा, वाई कोऑर्डिनेट शुड बी 40 बिकॉज सम शुड बी 41, 1,40, देन 2,39 एंड सो ऑन। तो 0 से लेके 0 1 2 और फिर एक्स कोऑर्डिनेट हमारा लास्टली 41 होगा, यानी कि यहाँ पे भी पॉइंट्स कितने होंगे? 42 ही होंगे। नंबर ऑफ पॉइंट्स तो इनफाइनाइट होंगे, बट जिनके कोऑर्डिनेट्स इंटीग्रल हों ऐसे पॉइंट्स 42 ही होने वाले हैं, ठीक है, दोज पॉइंट्स विल बी 42 ओनली। सो टोटल पॉइंट्स कितने आगे बाउंड्री पे हमारे? 42 प्लस 42 प्लस 42, बट यहाँ पे ध्यान ये देना है सम पॉइंट्स आर डबल काउंटेड। कौन से पॉइंट्स हैं हमारे विच आर डबल काउंटेड? दोज पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन वर्टिसेस, यानी कि पॉइंट सी इज डबल काउंटेड, लाइन ए सी में भी काउंट हुआ है, लाइन बी सी में भी काउंट हुआ है, पॉइंट बी इज डबल काउंटेड एंड पॉइंट ए इज डबल काउंटेड। तो डबल काउंटिंग हो गया, तो एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे इन थ्री पॉइंट्स को, तो -3 कर दोगे, दैट इज 126 -3, यानी कि 123 पॉइंट्स आर ऑन द ट्राइंगल, और 780 हमने ऑलरेडी इनसाइड निकाले हुए थे, तो 780 प्लस 123 दैट इज इक्वल टू 903। ठीक है, इनसाइड वाले पॉइंट्स को भी हम मैनुअली निकाल सकते थे। कैसे निकालते हैं मैनुअली? बिकॉज देखो दिस इज 1,0 1,40, सिमिलरली ऑन दिस लाइन दे विल बी अ पॉइंट 0,40, और 0,40 से 1,40 के बीच में क्या कोई और पॉइंट हमें मिलने वाला है? क्या कोई और पॉइंट मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिकॉज 0 से हम स्ट्रेट अवे एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया, पहले 0,40 है, देन 1,40 है, तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखो, इसके नीचे वाला पॉइंट होगा 0,39, एंड देन दिस पॉइंट इज 2,39, सो इनसाइड देयर विल बी अ पॉइंट दैट विल बी 1,39, दैट विल बी 1,39, तो एक पॉइंट हमें मिला है दैट इज 1,39। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, हमने ऊपर से स्टार्ट किया, तो ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आएगा 0,38, एंड करेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन लाइन बी सी विल बी 3,38, क्योंकि सम तो 41 है, तो इन साइड द ट्राइंगल वन पॉइंट विल बी 1,38, देन 2,38, ठीक है। सो 1,38 2,38 एंड सो ऑन, यानी कि पहले पॉइंट आया 1, देन पॉइंट आए 2, फिर नेक्स्ट होगा 0,37, एंड हियर द करेस्पॉन्डिंग पॉइंट विल बी 4,37। तो इनसाइड द ट्राइंगल 1 2 3 पॉइंट्स, 1,37 2,37 3,37, यानी कि 3 पॉइंट्स मिलेंगे एंड सो ऑन। और लास्ट लाइन हमारा क्या आएगा? व्हेन दिस इज 0,1 एंड लास्ट हियर वी विल बी गेटिंग अ पॉइंट दैट इज 40,1। तो फ्रॉम 0 to 40 इनसाइड कितने आएंगे? इनसाइड 39 पॉइंट्स होंगे, लास्ट वैल्यू आया 39, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट टिल 39, सम निकालोगे इनका भाई, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 39 पॉइंट, टोटल सबका सम निकालोगे भाई, हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज क्लियरली एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो 1 से लेकर 39 तक का सम करना है, दैट विल बी n इंटू n प्लस 1/2, यानी 39 इंटू 40/2 विच इज 780। तो मैनुअली भी हमने करके देख लिया कि सॉल्यूशन हमारा आ रहा है 780, जो अभी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। क्या ही क्लियर है? ओके, क्या ही बात समझ में आती है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वन, find a number of solutions of the equation x plus y plus z is equal to 30 such that x, y and z are integers, all are integers, and 0 is less than x is less than y is less than z। देखिए हमें एक क्लियर डायरेक्शन दिया हुआ है कि 0 इज लेस देन x, एंड इफ 0 इज लेस देन x एंड x y z ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं हमारे, तो डेफिनेटली क्या होगा? इफ 0 इज लेस देन x, तो x y एंड z मस्ट बी नेचुरल नंबर्स। पहला कंक्लूजन तो है x y एंड z आर नेचुरल नंबर्स। Additionally, since they are unequal, so they are distinct natural numbers. They are not equal. So x, y, and z are natural numbers and they are distinct natural numbers. Isn't it so? और हमें इक्वेशन क्या गिवन है? x plus y plus z is equal to 30. This is equal to 30. अब केसेस क्या क्या बन सकते हैं? Since there are 3 variables, so 3 cases can be there. All 3 can be distinct. All 3 distinct.
जो कि हमारे काम का केस है, बिकॉज वी नीड ऑल थ्री डिस्टिंक्ट, और टू आर आइडेंटिकल, एग्जैक्टली टू आर आइडेंटिकल, और ऑल आर आइडेंटिकल, क्योंकि थ्री आइडेंटिकल हो गए, सारे आइडेंटिकल हो गए, तो इधर ऑल थ्री आर डिस्टिंक्ट और एग्जैक्टली टू आइडेंटिकल और ऑल आर आइडेंटिकल। अब इन केसेस को हमें रिमूव करना पड़ेगा टोटल केसेस में से। टोटल में थ्री पॉसिबिलिटीज विल बी देयर, ऑल थ्री डिस्टिंक्ट, एग्जैक्टली टू आइडेंटिकल, ऑल आर आइडेंटिकल। अब हम टोटल केसेस तो इजीली निकाल सकते हैं, बिकॉज टोटल केसेस के लिए हमें क्या चाहिए, सिंस एक्स वाई जेड हैव टू बी नेचुरल नंबर्स, ऑल एक्स वाई एंड जेड आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो टोटल सॉल्यूशन तो निकल जाएंगे। क्या करेंगे, पहले ही 1 1 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और जैसे ही तुमने 1 1 1 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिमेनिंग बचेगा 27। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या आ जाएंगे, अब 27 जैसे ही 1 1 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सो नाउ इन द न्यू कंडीशन एक्स वाई एंड जेड हैव टू बी ग्रेटर इक्वल 0। ठीक है, कैपिटल एक्स मान लो, कैपिटल वाई मान लो, कैपिटल जेड मान लो, सो दीज हैव टू बी ग्रेटर इक्वल 0 अगर पहले ही 1 1 1 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, हैव टू बी 27 स्टार्स प्लस 2 बार्स, तो 29 C2 will be total number of solutions, that will be 29 into 28 by 2, यानी 29 into 40, दिस विल बी टोटल सॉल्यूशंस। बट यहाँ टोटल में हमारे केसेस आएंगे एग्जैक्टली टू आइडेंटिकल वाले भी और ऑल आइडेंटिकल वाले भी। तो हमें जो काम के केसेस चाहिए, वी नीड ऑल थ्री डिस्टिंक्ट वाले सॉल्यूशन, जो कि हम एग्जैक्टली एक बार में स्ट्रेट अवे नहीं निकाल सकते थे, जिसके लिए हमें टोटल केसेस निकाले, और टोटल में से जो काम के केसेस नहीं है उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। और दो तरह के केसेस सब्ट्रैक्ट होंगे, एक होगा हमारा एग्जैक्टली टू आइडेंटिकल, एंड सेकेंड विल बी प्लस ऑल थ्री आइडेंटिकल। दोनों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, केसेस को ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए, अदरवाइज दोनों ही केसेस को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब इनको काउंट करते हैं। सो इफ ऑल थ्री आइडेंटिकल, तो उसका तो हमें सॉल्यूशन स्ट्रेट अवे दिखेगा, दिख ही रहा होगा। ऑल थ्री आइडेंटिकल कब आएगा हमारा, व्हेन ऑल थ्री एक्स वाई एंड जेड आर इक्वल, व्हेन ऑल थ्री आर इक्वल टू 10। 30 हमारा मल्टीपल ऑफ 3 है, तो डेफिनेटली निकल रहा है हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे। अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होता, तो डेफिनेटली ऑल थ्री इक्वल वाला कोई भी केस हमें नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड वॉज इक्वल टू 20, तो फिर हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता जहाँ पे कि हमारे तीनों ही वैल्यूज इक्वल हो, बट यहाँ पे होगा बिकॉज 30 हमारा इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, सो दैट इज वाई स्ट्रेट अवे हमें पता है कि यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन एग्जैक्टली मिलेगा व्हेन ऑल थ्री आर इक्वल। नाउ सेकंड केस लेते हैं, व्हेन टू ऑफ दीज आर इक्वल, दो वैल्यूज इक्वल है और एक हमारी डिस्टिंक्ट वैल्यू है। ओके, टू आर इक्वल एंड वन इज डिस्टिंक्ट। और ध्यान ये रखना है हमेशा, सिंस दीज वैल्यूज आर नेचुरल नंबर्स, तो हम जीरो वैल्यू लेके सॉल्यूशन नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे दीज वैल्यूज कुड हैव बीन ग्रेटर इक्वल टू 0, तो फिर हम लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 एंड देन जेड इज 30। ये एक हमारा सॉल्यूशन होता। ठीक है, ये एक हमारा सॉल्यूशन होता। इज दैट क्लियर? ओके, सो कहाँ पे थे हम, सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 30। 0 0 30 वाला केस हम लेते, तब लेते व्हेन एक्स वाई एंड जेड ऑल कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट इन प्रेजेंट सिनारियो हमारे एक्स वाई जेड सारे के सारे ग्रेटर देन 0 तो हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, यानी कि 0 वाला सॉल्यूशन नहीं लेंगे हम। विल बी स्टार्टिंग विद पुटिंग एक्स एंड वाई इक्वल टू 1। ठीक है, एनी टू कैन बी आइडेंटिकल, बट हमें टू को आइडेंटिकल रखना है, तो टू आइडेंटिकल वाले केसेस हम काउंट कर रहे हैं, एग्जैक्टली टू आइडेंटिकल वाले। ठीक है, सो वी कैन पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 एंड देन z भी 28, z विल बी 28। Similarly, we can put x equal to 2, y equal to 2 and z will be equal to 26. और x equal to 3, y equal to 3, z will be equal to 24. और x is 4, y is 4, z will be 22 and so on. लास्ट वैल्यू क्या आएगा, लास्ट में हमारा क्या आएगा, जबकि z को हम कितना ले सकते हैं मिनिमम, x भी हमारा x कैन बी 14, y कैन बी 14 एंड z विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि 15 15 रखते ही 0 हो जाएगा, तो ये वाला केस तो नहीं लेना है। तो लास्ट केस विल बी 14 14 2, और पहला केस होगा हमारा दैट इज 1 1 28। तो टोटल केसेस कितने आ रहे हैं हमारे, फ्रॉम 1 to 14, एक्स इज टेकिंग वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 टिल 14, 1 से लेकर 14 तक टोटल 14 केसेस आ रहे हैं, 14 केसेस आ रहे हैं। बट भूल मत जाना, बीच में एक केस आएगा हमारा, दैट इज 10 10 0 10 10 10। तो बीच में एक केस होगा हमारा, दैट इज व्हेन एक्स वाई एंड जेड ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल। और ये केस हमने ऑलरेडी काउंट किया हुआ है। ठीक है, काउंट किया हुआ है, तो डेफिनेटली इस केस को हटाना पड़ेगा। तो अपने काम के केसेस कितने हैं, व्हेन एग्जैक्टली टू आर आइडेंटिकल। ठीक है, सो 14 - 1, द रेलेवेंट केसेस विल बी 13 केसेस एंड नॉट 14, 13 केसेस एंड नॉट 14। अभी जो 13 केसेस आए हैं, यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली है कि सिंस एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट वेरिएबल, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं हमारे, तो डेफिनेटली 1 1 28 इज अ वन सॉल्यूशन।
सेकंड सॉल्यूशन कुड हैव बीन 128 1 क्योंकि तब भी 30 आएगा, और थर्ड सॉल्यूशन कुड हैव बीन व्हेन 28 is x and then y and z are equal. तो इधर x and y are equal और x and z are equal और y and z are equal. तो अरेंजमेंट्स हमारे इंपॉर्टेंट है. 13 केसेस आएंगे. टोटल केसेस कितने होंगे? 13 इंटू टोटल, सिंस 2 आर आइडेंटिकल, टोटल 3 आइटम्स है जिनको तुम अरेंज करोगे 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, यानी कि दिस विल बी टोटल सॉल्यूशंस हमारे काम कितने आए? एक्जैक्टली 2 आइडेंटिकल में 13 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 13 इंटू 3 39 केसेस व्हेन exactly 2 identical and one case when exactly 3 are identical. Okay, ठीक है, वन केस व्हेन एग्जैक्टली 3 आर आइडेंटिकल. तो हमने काम के केसेस तो अपने निकाल लिया. दैट विल बी 29 इंटू 14 माइनस एग्जैक्ट 2 आइडेंटिकल वाले 39 और एग्जैक्टली 3 आइडेंटिकल वाले 1. इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया. बट क्या ये हमारा सॉल्यूशन होगा या यहाँ पे भी अभी कुछ और करना बाकी है? देखो इसके बाद में क्वेश्चन हमसे ऑल्सो क्वेश्चन इज सेइंग दैट x इज लेस देन y एंड y इज लेस देन z, यानी कि हमें एक परफेक्ट ऑर्डर गिवन है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर गिवन है. ठीक है, सो क्योंकि ऑर्डर भी गिवन है, फॉर एग्जांपल एक हम सॉल्यूशन अगर कंसिडर करें व्हेन ऑल थ्री आर डिस्टिंक्ट, लेट अस से x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 17 और z इज इक्वल टू 17 प्लस 18 हो गया 12. तो दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस. बट इस एक केस के टोटल सॉल्यूशंस कितने आएंगे? 3 फैक्टोरियल आएंगे, बिकॉज ये केस हमारे 3 फैक्टोरियल बेस में अरेंज होगा. एक केस हुआ 1 17 12 एक हो जाएगा 1 12 17 एक हो जाएगा 17 1 12 एक हो जाएगा 17 12 1 एक हो जाएगा 12 1 17 एंड 12 17 1. टोटल केसेस आए 6. बट सिंस हमें एक ऑर्डर गिवन है, यानी कि x y और z का ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है कि x शुड बी लेस देन y एंड y शुड बी लेस देन z, यानी कि हमारे काम का सॉल्यूशन इन 6 में से सिर्फ एक होगा. ओनली वन विल बी आवर काम का केस, आवर रेलेवेंट केस. और वो केस कौन सा होगा? व्हेन x इज लेस देन y एंड y इज लेस देन z, यानी कि दिस विल बी आवर रेलेवेंट केस 1 12 एंड 17. आउट ऑफ दीज 6 केसेस और 3 फैक्टोरियल केसेस में से हमारे काम का सिर्फ एक है. तो अल्टीमेटली जो वैल्यूज हमारी आई हैं उनमें से हमारे काम के केसेस कितने होंगे? दीज रेलेवेंट वैल्यूज मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल. टोटल केसेस 3 फैक्टोरियल, उनमें से काम के केस एक है. अगर 2 केसेस काम के होते 2 बाई 3 फैक्टोरियल करते, बट यहाँ पे क्योंकि ओनली 1 केस इज रेलेवेंट तो 1 बाई 3 फैक्टोरियल किया हमने. ठीक है, 1 बाई 3 फैक्टोरियल किया. दिस विल बी आवर फाइनल आंसर. फाइनल आंसर आएगा 29 इंटू 14 माइनस 40 इंटू 1 बाई 3 फैक्टोरियल. देख लेते हैं आंसर क्या आएगा. 29 इंटू 14 क्या आने वाला है? 14 9 12 बचा, 28 और 12 406 माइनस 40 बाई 6. दिस विल बी 366 बाई 6, यानी कि 61 केसेस हमारे काम के होंगे. 61 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 61 केसेस हमारे लिए रेलेवेंट होंगे. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, 61 केसेस हमारे लिए रेलेवेंट होंगे. अगर जस्ट इन केस क्वेश्चन में यहाँ पे लैंग्वेज होता है कि ईदर x इज लेस देन y लेस देन z और y इज लेस देन x लेस देन z, तो डेफिनेटली हमारे पास फिर 2 केसेस काम के होते. ठीक है, 2 केसेस रेलेवेंट होते. इन दैट केस, इन दैट सिनारियो, तो वहाँ पे हमारा आंसर होता 2 बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करते फाइनली इंस्टेड ऑफ 1 बाई 3 फैक्टोरियल, अगर ऐसा केस होता. क्या क्लियर? बट इन एनी केस हमने क्या किया, टोटल 3 वैल्यूज थी, हमें पता है कि ऑल 3 कैन बी डिस्टिंक्ट, 2 कैन बी आइडेंटिकल और ऑल 3 कैन बी आइडेंटिकल. तो टोटल केसेस हमने सबसे पहले निकाले. टोटल में से हमने फिर सब्ट्रैक्ट किए एक्जैक्टली 2 आइडेंटिकल वाले एंड एक्जैक्टली 3 आइडेंटिकल वाले. ठीक है, और क्योंकि उसके बाद एक ही सॉल्यूशन काम करता था, तो डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इनटू 1 बस एक ही केस काम करता. सो दिस वाज आवर आंसर. क्लियर है? नेक्स्ट सेशन में विल बी डूइंग सम मोर 1 और 2 और 3 क्वेश्चंस ऑफ सिमिलर टाइप, जहाँ पे कि हमें केसेस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और सेम लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा. सो एक बार इस क्वेश्चन को अपने एंड पे पॉज करके अपने एंड पे अच्छे से फिर से एक बार सॉल्व करना है, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन को अपने एंड पे हैंडल करना, और कमेंट में मेंशन करना कि तुम्हें सेशन में जो भी हमें क्वेश्चन डिस्कस किए समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कैसा लगा सेशन. एंड इफ देयर इज एनी डाउट व्हाट्सएवर देन मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एज वेल. ओके, सो इतना ही रखते हैं सेशन में. एंड इफ यू नॉट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना. यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADIDYAKT. एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एंड यू लाइक द कंटेंट, तो इस वीडियो को तो लाइक करना ही करना, साथ में ऑल्सो सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.